इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से आज होटल पिकैडली में सेवियर इन्वायरोटेक के तत्वाधान में इंडोटोपिया में छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक विषयों पर चर्चा की। शिखा सिन्हा के संयोजन एवं वामिका विद्रा वाजिद समृद्धि और वर्षा के निर्देशन में हुए शैक्षिक इंडोटोपिया कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 समूह में सहभागिता कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य विषयों पर चर्चा परिचर्चा कर तार्किक और बौद्धिक प्रतिभा प्रदर्शित की। समारोह में डॉक्टर बनानी प्रिया खन्ना और जी आपने कहा कि OMG टू अडल्ट चलेंगे जो कि CBFC ने कहा था। CBFC सेपरेट बॉडी है, तो क्यों आप OTT रेगुलेशन के लिए एक गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी चाहती है? व्हाई नॉट अ सेपरेट बोर्ड? I'm so sorry. Can you please? We had to face so much of controversies. Instead, movies like Hate Story and Kya Cool Hai Hum and Grand Masti, these type of movies are openly available on internet and OTT platforms. What about them? We need regulation for them, na? Written in the Constitution and you have multiple acts and articles. What does we want? We say that Article 19, Clause 2 is very vague. It only provides for reasonable restrictions on freedom of speech. The Miller test is a test which has been adopted in the United States. It has consistently proved much better than the Hickling test, which is in India, and which was in fact abolished by the Supreme Court as well. The Miller test is a three-step test which provides for, first of all, it has 3 steps to it. Where first you have you evaluate its appeal to prurient interest. You evaluate how it might appeal to people who are vulnerable. Second, it evaluates offensiveness to community standards, and third, it evaluates artistic or political value. Is there a scope for overreach by that separate body? पहले तो केवल सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच करती थी, अब प्राइवेट करेंगे। And a person should be. It's been happening with news channels. We have seen it. So they will obviously be like, ये हमारी government की ideology के साथ align नहीं करता, तो हम ban कर देंगे. So how are you justifying this by forming a legal government body? Giving them actual permission. समझ गया। बताइए। दिमाग नहीं हो रहा, बताइए। अलग, ये तो वो तो आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी हो नहीं सकती। आप चिट से आंसर करिएगा। 50. If you want to have a MOE, I want everyone back here by 2:50. Yes, should be allowed or entitled to ask questions to the government and hold them accountable for anything wrong they have done. Yes. The press should be allowed and responsible for holding the government accountable. Then, ma'am, Prime Minister, can you please tell me that why in almost Mohan Singh had over 90 plus press conferences? I think we will need to have press conferences then. सही बात है, इसमें तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। Thank you, Madam Prime Minister. Next, okay. So since you said we can have a press conference, then we'll work something out. देवराज ने सामाजिक द्वारा के लिए आवाज उठाई है और वांछित समुदायों के हेतु की रक्षा के लिए काम किया। धन्यवाद। Tata must appoint a grievance officer based in India, which means that it's not completely towards the government. गवर्नमेंट का पूरी तरीके से काम नहीं है ये चीजें सेंसर करना, पूरी तरीके से इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द गवर्नमेंट कि सेंसर कर रहे हैं। इट्स ओके, पहली चीज ये होगी। सेकंड थिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स में हैव अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। OTT खुद से अपने ऊपर रेगुलेटिंग बॉडीज लगा सकता है, खुद से अपना सेंसरशिप लगा सकता है। ऐसे कि अगर OTT प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स को भी देखते हैं, तो वहाँ पे इवन मूवीज भी देखते हैं, तो स्टार्टिंग में U/A या फिर 18+, 13+, 12+ या रेटेड फॉर ऑल दिखाता है, लेकिन Has strong culture and religions. Value the have reported feeling safe and when traveling alone in Iran, as long as they respect local customers.
helpful and respectfully local. Iranian people are known. Next up, we have the delegate of Spain. लगातार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का समाधान करते हैं। स्पेन में अपने विशाल नीति में जेंडर जो कि बोलते हैं, वैसे ही MUN में वो लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोग कंट्री के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, वो बिल्स पास करते हैं, वो लॉज बनाते हैं। जैसे एंटार्क्टिका में लॉज, एंटार्क्टिका की कंट्री नहीं होने करती ना, तो वहाँ के लॉज UN से बनते हैं। स्पेस में क्या होगा, स्पेस के लॉज UN में बनते हैं, उन कंट्रीज के बेसिस पे सोल्यूशंस निकलवाते हैं। दैट इज व्हाट वी डू इन एन एनपॉइंट। तो दूसरा ये तो सेशन में है, किस तरह के सेशन किए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेशन है, उसमें क्या क्या किया गया ये बताइए। हमारे यहाँ 6 किस्म कमिटीज हैं, उससे 5 डिबेट कमिटीज हैं। एक है AIPPM। AIPPM इज ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी होती है असली वर्ल्ड में, वो बैठाती है AIPPM, और उसमें वो लोग ऐसे चीज डिस्कस करते हैं। बिकॉज AIPPM में जो प्रोसीजर होते हैं वो लोकसभा से कम फॉर्मल होता है, तो AIPPM इसलिए बैठाई जाती है। वहाँ पे वो लोग MLA और MP के अलावा भी लोगों को बुला सकते हैं। पार्लियामेंट के बारे में हम मेनली बात करते हैं। MUN में बहुत सारे कमिटीज होते हैं जिसमें एक ही डिबेट करनी होती है और मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस का दूसरा होता है, और उनकी अमेरिकन पार्लियामेंट्री और यूनाइटेड नेशंस इन टोटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो UN में आते हैं, UN में हमारे पास अलग अलग कमिटीज होती है, पर सबसे ज्यादा MUN को जो कराते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, UNCSW। यहाँ पे हम औरतों के बारे में बात करते हैं, औरतों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, और अलग अलग केसेस जो औरतों से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जहाँ पे हम औरतों पे ही ना फोकस करके नॉर्मल ह्यूमन की राइट्स, उनकी जस्टिस, उनकी फ्रीडम, उनकी इमेंसिपेशन, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है क्राइसिस का। अब MUN में अगर हम इन्हें बस पार्लियामेंट से डिबेट कराए तो बहुत बोरिंग हो जाती है। इसको थोड़ा मजेदार बनाने के लिए हम CT, काउंसिल ऑफ ट्विस्टेड डायमंड्स, इसमें जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज होती हैं, जैसे 2 पैरेलल यूनिवर्स आ जाए, या फिर हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं हमारे स्पेस के बारे में कि एक स्टार है, देन फिर वो ब्लैक होल बन गया, एंड देन व्हाट इज इन ब्लैक होल, और उसमें अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स या फिर पुनर्जन्म का ले लीजिए, तो अलग अलग यूनिवर्सेस होते हैं, तो हम उससे मिलाकर करते हैं। CDT एक साइंटिफिक एस्पेक्ट उठाता है, और उस साइंटिफिक एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि दुनिया कितनी अलग होती। अगर मान लीजिए कि किसी 100 साल पहले कोई देशभक्ति ने कभी देशभक्ति का काम ही ना किया होता, तो उसकी वजह से हमारा देश बहुत अलग है। सिमिलरली हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उठाते हैं देश भर के, जैसे अगर नेल्सन मंडेला कभी जेल ही ना गए तो साउथ अफ्रीका बहुत अलग होता है। अब वो लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव उठाते हैं। सिमिलरली हमने एक और कमेटी बनाई है फिक्शनल, जो और कहीं होती नहीं, UNCWASA। उसमें हमने एक कंट्री की बात की है जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको हमने UN में लाने की बात की। कुछ कंट्रीज अभी भी देर कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उन कंट्रीज का इंक्लूजन कैसे होगा इंटरव्यू। हमारा मेन टॉपिक था वो इस कमेटी को बनाने के लिए, और ताकि छोटे बच्चे इसके बारे में जान सके, हमने उसमें थोड़ा बच्चे वाली चीजें ऐड कर दी, सुपर हीरो वगैरह का, ताकि उन लोगों को इसे आसानी से समझ में आए। हमारे पास आता है एक IPC इंटरनेशनल। अगर बच्चा मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, वो पार्लियामेंट या फिर डिबेट में इतना अच्छा नहीं है, तो क्यों हम क्रिएटिव बच्चों को पीछे छोड़, हम उनको इस चीज में लाते हैं। IPC में हमारा आता है फोटोग्राफी, जर्नलिज्म और कैरिकेचर, जिसमें बच्चे जो फोटो खींचने में बहुत अच्छे हो, वीडियोग्राफी में बहुत अच्छे हो, या फिर जो बिजनेस में बहुत अच्छे हो, या फिर जो कैरिकेचर दैट इज ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, उनको भी हम बुलाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाए और लोगों को बता पाए कि क्रिएटिवनेस इज आल्सो ये लोग इन कमेटीज के उन पॉइंट्स को उठाते हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। ये लिखित में हो सकता है, जर्नलिस्ट में, या फिर वर्बली भी हो सकता है, आपकी इंटरव्यूज में, ड्राइंग के वे में कैरिकेचर्स तो दिखाते हैं, और फोटोज और वीडियोस में उसको फोटोग्राफर्स मूवमेंट को बेसिकली कैप्चर करते हैं। प्रेजेंट इशू पे क्या कुछ डिस्कशन हुआ ऐसा? जैसे आप जैसे OTT प्लेटफॉर्म है या दूसरे
फ्रीडम टू स्पीच है, इस पे किस तरह से आप लोगों ने किया? अभी AIPPM में उन्होंने OTT रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म पे बात करी थी और अभी अलाहाबादिया केस पे बात करी। इसमें काफी प्रेवलेंट है और आई थिंक बच्चे OTT प्लेटफॉर्म बहुत देखते हैं, इस चीज में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे, वो बहुत ज्यादा इनके पास नॉलेज। तो हमने सोचा कि जैसे बाकी एनिमल्स में लोग यूजुअली बिल्स के बारे में बात करते हैं, क्यों मैम कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बताइए आप बता दीजिए। ये बताइए डायरेक्टर तुम भी बताइए। हाँ जी, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ साथ। जी रोल सब इंडिया में सीवन की सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये इवेंट में दो चीजें हैं, एक तो MUN मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस उन्होंने समझाया और दूसरी चीज है आज द एक्सपर्ट्स। आज द एक्सपर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स के, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गया, एक पैनल में बैठे बच्चों से बात करना। ये करियर काउंसलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज करियर काउंसलिंग आपको गाइड करता है कि आप करियर की तरफ कैसे जा सकते हो। जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको डायरेक्ट बताएंगे कि क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है जो इस करियर की जो वो चूज करना चाहते हैं। MUN क्यों करना है? MUN का फायदा ये है कि बिकॉज हमारे पास अलग अलग कमिटीज है, जो बच्चों को जिस कमिटी में इंटरेस्ट है वो उसके बाद में रिसर्च कर सकते हैं और चीजें जान सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज कि बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उनको एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है कि डिबेट कैसे करी जाती है, बात कैसे की जाती है, मुद्दा कैसे रखना है। यही पूरा एस्पेक्ट है हमारे इवेंट का और हम ये MUN करना। मैम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ओवरसीज के बारे, एजुकेशन के बारे में। मेरा नेहा वर्मा है, मैं सोफिया कंसल्टिंग से हूँ। हम एक 28 साल पुरानी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से रन करते हैं अपने आप को। इस माध्यम से मतलब एडुटोपिया के द्वारा हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कौन सा राइट कंट्री लेना चाहिए, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए और किस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत एजेंट्स हैं मार्केट में जो ये कहते हैं कि हमें ये कोर्स करना चाहिए, आपको ये फायदा होगा, पर उनमें उनका फायदा होता है। पर हम बच्चों को वो कोर्स सजेस्ट करते हैं जिनमें उनका फायदा होगा, जिनसे वो इतना पैसा जो डालते हैं उसका उनको रिटर्न मिले, वो एंड टू एंड सोल्यूशन मिले। हमारे जो टाइप्स है वो टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ हैं, चाहे वो UK में बच्चे टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो रसल ग्रुप है, चाहे US में आईवी लीग, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ये ना सब बच्चों के सपनों की यूनिवर्सिटीज हैं। तो हम स्कॉलरशिप्स के जरिए उनको उन यूनिवर्सिटी से मिलाते हैं ताकि वो फ्री एजुकेशन ले सकें और गाइडेंस ले सकें हमसे। फिर यही हमारा माध्यम है। और आज जुड़ने का ये कारण है कि जब मैंने मैम से बात करी तो इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत पैसे लिए जाते हैं बच्चों से, सिर्फ काउंसलिंग के भी 1.5 लाख तक लिए जाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। बट जब वो बच्चे सोफिया के साथ जुड़ेंगे, हम एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, हम बच्चों से चार्ज नहीं करते, 0 रिस्क रहता है, तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग और हम बच्चों को सोल्यूशंस देते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का जो वो लेके आते हैं। किसी को बजट की प्रॉब्लम है, किसी के पॉकेट्स डीप नहीं है, किसके पास बहुत पैसे हैं, तो मतलब जिसका जो बजट है, जिसकी जो एस्पिरेशन है, जिसकी जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनको काउंसलिंग देते हैं। आज भी मौका यही है कि हम उन बच्चों को बता पाए कि उनके लिए क्या सही है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता उनके लिए सही क्या है। जो माँ बाप कहते हैं वो उनको समझ नहीं आती, तो हम उस जरिए में उनको समझाएंगे कि ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो क्या आप कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं जिससे कि बच्चों को टेस्ट लेते हैं कि उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और किस तरह से जा सकता है? ध्यान में रखते हैं कि बच्चा 11वीं या 12वीं में क्या ले रहा है, क्योंकि हमारे पास जो 90% बच्चा आता है वो 12वीं के बाद ही आता है, जिसने अपनी ड्रीम चुन ली होती है, उसको क्या करना है, वो आर्ट्स का है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो 11वीं में भी हुए हैं, उनको हम जरूर बताते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप नॉन मेडिकल या मेडिकल लीजिए, क्योंकि आजकल AI का जमाना है, या मेडिकल फील्ड में बच्चों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो इंडिया की मेडिकल फील्ड है वो उतनी डेवलप नहीं है। जो बाहर के लोग, जो बाहर की टेक्नोलॉजी से हम बच्चे अपने आप को बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जोर रहता है। जैसे मेडिकल के फील्ड में, जैसे आप ये देखें रशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर भी, अगर आपने देखा होगा, जब वो बच्चे पढ़ाई करके इंडिया में वापस आते हैं तो उनको वो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स की जॉब नहीं मिलती जो यहाँ के MD डॉक्टर्स लेते हैं। तो हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि आप जो अपनी एजुकेशन है वो ऐसे फील्ड में लिए जहाँ उनकी जरूरत है। जैसे कनाडा में साइकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है, US में मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो उस तरह के कोर्सेज वहाँ पे ओल्ड केयर नर्सिंग चलती है।